I am connected through a hotspot of my mobile. अगर प्रॉब्लम आया तो I will stop video in future. Okay sir. कुछ आया तो participants have started coming in. Yes. Yeah. So we will wait for 1 minute. We'll see how many joins in 1 minute. Then we will start. Okay. This is the plus point of technology, na? Yes sir. Starting on time, ending on time. No formalities, direct to the subject. I think we have close to 100 attendees now, 97. So maybe we will start, Vijay sir. I think हर Sunday है तो लोग थोड़ा आराम से login करेंगे. Okay. Okay, 100 cross हो गया. Let's start. Good morning, members, and welcome to the 8th Study Circle meeting of Borivali Central CP Study Circle. Before we start our today's session, let us raise for the Institute motto with the Code of Ethics. सुप्तेषु जाग्रति येष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्लं तदेव शुक्लं ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता.
Welcome back, members. On a Sunday morning, on a Valentine's Day, I wish all of our members a happy Valentine's Day to their families. We have an young eminent speaker, Umesh Sharma ji, who is very an expert in the field of GST audit. He will be taking us through the recent amendments in GST, or then what are the how to face the GST audit notices and how to do the GST audit. Some tips, etc., will be given from Umesh Sharma ji. Sorry, Umesh Sharma ji only. Now I request our core committee member Shreyas Trivedi to briefly introduce him. Thank you, Vijay sir. Welcome, Umesh Sharma ji. Friends, today we have CA Umesh Sharma to take us through the topic for the day. CA Umesh Sharma is a practicing chartered accountant and partner at RB Sharma and Company. He has completed his diploma in information system audit conducted by the ICAI. He has been the vice chairman of WIRC for the year 2019-20. He's been the youngest chairman of Aurangabad branch of WIRC of ICAI for the year 2002. He's been the author of weekly article Karniti based on Krishna and Arjuna conversations published in Lokmat. Till date, 335 plus weekly articles has been published in Marathi, Hindi, and English. 2 books based on the same articles have been published for income tax and GST for the help of common man. He's been awarded the best paper writer of the STPM RRC in 2013. He's been lecturer on GST at MP Law College. He's been the chief editor and compiler of MVET audit manual published by the Tax Practitioners Association Aurangabad. He's been also the contributor of revised edition of a guide to MVET audit and background material on GST published by WIRC of ICAI. He's also been an author of various other books on GST and income tax. So with this brief introduction, I would like to hand over the proceedings to CA Umesh Sharma ji. And before I do that, I would like to also announce that we will also make a contribution of rupees 500 to CABF fund on behalf of the speaker for the day as a token of our appreciation. So over to you, sir. Thank you, Vijay ji, and thank you, Trivedi ji, for giving me an opportunity. Thanks to Borivali Central CP chapter for giving me chance to present before you the GST amendments on the Valentine Day. आज का दिन अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि अपने फैमिली के साथ हमने समय गुजारना चाहिए, बट आप जीएसटी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम जीएसटी को अपना वैलेंटाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जीएसटी ऑडिट अपने से दूर भाग रहा है. तो यही एक लाइफ का अपना एक ये है बैलेंसिंग कि हम जिसको चाहते हैं वो कहीं और पर अब वैसा नहीं है, कॉलेज के टाइम की बात है ये. अब वी ऑल आर हैप्पीली मैरिड, सो दैट इज गुड थिंग. एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरी भाषा पे मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो. मेरे सेशन के अंदर आप रिलैक्स होके बैठो और थोड़ा सा एजुटेनमेंट वाला माहौल में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. सो प्लीज डोंट टेक अदरवाइज my jokes or my PPTs or my slides. Just enjoy the session and go by the what I want to convey in that. First of all, this is I think my second presentation before Borivali. Yes. I came here 2 years before with Durgesh Kabra sir, and that time GST was just introduced, and it was a very good interaction there in a hall, but now physically we are unable to meet, so we are virtually there. I am going to share my screen. Please let me know whether it is visible. आ गया screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I am on my hotspot of mobile. If any issues arises, please let me know. So I will shut down the video and don't go for the audio. But hope God will be great. Technology will help us to go through the 1.5 hours or say 2 hours for our discussion. I will try my level best to conclude the topic which was given to me. We will split into 3 aspects of the topic. That is the one recent amendment, then the GST audit issues, and then we will take up the GST notices also.
So let's start the session. The recent amendments, if we want to study, we have to go it from the 1st January 2019, 2021, क्योंकि बजट के पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट कर दे रही है जो उनको पॉपुलर नहीं लग रही है या जो उनको लगता है कि इट इज नीडफुल टू डू. सो बजट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर अ नॉन इवेंट day in future, because nowadays very limited amendments they are bringing it. Yes, but they are bringing more amendments in the other laws also, that is income tax and customs. Or this budget 2021, we have seen lots of changes has been made in the customs rates and uh, reconciliations with the import exports of particular rate, so that Atmanirbhar Bharat can be promoted. But in GST there are few changes which we have to see. और एक ये बात भी हुई बजट के अंदर कि जब 12:30 बजे तक मैडम बता रही थी, फिर बाद में 1:30 बजे तक सब अपने पास में पीडीएफ आए, और जैसे 1:30-2 बजे जीएसटी ऑडिट का किस्सा शुरू हुआ, सब जिधर उधर हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप से सब गायब, सब अपने अपने बजट्स में लग गए कि क्या होगा प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट अपने इससे. And then we started our own calculations, what will happen in future of the profession. So that is also one of the discussion which we are going to share. Then there are some issues of 9 and 9C which I want to take up, and then budget proposals. Friends, this is the position of an proprietor. प्रैक्टिस में आजकल ऐसे ही हो रहा है कि इनकम टैक्स करे या जीएसटी करे समझ में नहीं आता है. 15 फरवरी है, ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट है. आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं. और फिर आगे 28 फरवरी को जीएसटी ऑडिट्स है. तो ये एक प्रोप्राइटरी की कभी कभी ऐसी हालत हो सकती है कि दोनों के कश्मकश में उसकी जिंदगी ऐसी हो जाए, और उसको अगर रिसोर्सेस प्रॉपरली यूज नहीं किए ऑफिसेस के. So this can be the position. It is just a starting of our session with a lighter note. Now let's go for the GST and its changes and its effects. My session I will keep it more of a practical oriented कि अपने ऑफिस में या अपने ऑफिस के सिस्टम्स में अपन ने क्या चेंजेस करने चाहिए, और इससे अपने क्लाइंट्स के साथ में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं हम, उसमें क्या चेंजेस होंगे जीएसटी प्रैक्टिस में. तो 1 जनवरी 2021 से जो चेंजेस लाने की कोशिश करी गई, उसके अंदर रूल 8 अमेंडमेंट हुआ. रूल 8 के अंदर उन्होंने पहला अमेंडमेंट लाया है रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन अभी तक हम जब क्लाइंट्स आते थे उनको हम बोलते थे कि कितने दिनों में रजिस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, तो हम उनको बोलते थे कि 3-4 दिन में आपका जीएसटी का नंबर मिल जाएगा. बट नाउ वी हैव टू चेक वेदर अदर ऑथेंटिकेशन इज अवेलेबल टू दैट पर्सन हु हैज कम अप फॉर द जीएसटी नंबर and the authorized signatories if it's a partnership firm or it's a company, and we have to check whether they can opt for other authentication. If other authentication is there, then this can be the case that we can do the biometrics of that person, and it's just like DSC. जैसा इनकम टैक्स में हम DSC लेते हैं, तो वैसा अगर यहाँ पर हो गया तो ये हमारे लिए एक ठीक रहेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन हम फटाफट ले सकते हैं. अगर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं होता है तो क्या होगा, तो इस केस में फिर हमको एक बायोमेट्रिक तो है ही, फिर इसके फोटोग्राफ्स, इसके केवाईसीज, ये सारे चीजें अपने को चेक करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से ये आगे प्रोसेस लंबा हो जाएगा. सो whenever a new client comes to us, please check whether we can do the other authentication of that person, and if these things are done, then if no option, then REG01, which is the application form that will go to the facilitation centers. फैसिलिटेशन सेंटर्स तो जीएसटी में अभी तक आए नहीं है, इनकम टैक्स में है, तो हो सकता है कि ऑफिसर के पास जाना पड़े, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन बताना पड़े, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस तब जाके ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा. सो व्हाई इट हैज बीन ब्रॉट इन, बिकॉज द फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फेक नंबर्स आर कमिंग अप, so fake invoicing, so they want to control it and make a technology driven system. So Aadhaar
will be the key in future also. And what is the impact on our practice? तो अपने प्रैक्टिस के अंदर अगर हम इम्पैक्ट की बात सोचेंगे तो पहले 3 दिन लगते थे जीएसटी नंबर लेने के लिए, अब उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको 7 दिन पे बढ़ा लिया है, आधार अगर ऑफ करते हैं तो। और आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं करेंगे तो 30 दिन तक का समय उनको मिलेगा और वेरिफिकेशन करने के लिए, और उसके बाद में ही अपने को जीएसटी का रजिस्ट्रेशंस मिलेंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू check what will be the process in future GST number मिलने का on the basis of Aadhaar. Then we come down to the next change. This change is of the cancellation of GSTN Rule 21. What is this change? आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी बहुत आ रहा है कि फेक इनवॉइसिंग और ये बाकी सब चीजें हो रही है. So and technology they are using more and more in GSTN. कोरोना के अंदर हमने ध्यान दिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डिपार्टमेंट ने जीएसटीएन ने ध्यान दिया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए, और उसका इफेक्ट हो रहा है अपने कम्युनिटी के ऊपर, यानी दे इंक्रीज्ड देयर टेक्नोलॉजिकल यूसेज. नाउ a system generated notices will come from GSTN for cancellation of GST number if the ITC exceeds the permissible limit of section 16. ये हमको क्यों ध्यान रखना है कि ये जनवरी से अमेंडमेंट्स उन्होंने रूल में लाई, क्योंकि जो बजट अभी आया है उसमें प्रपोजल है 16 सबसेक्शन 2AA का, जहां पर उन्होंने 2A से उसको लिंक कर दिया है आईटीसी को. तो वो अब यहाँ पर बड़ा एक इफेक्ट करेगा कि आईटीसी में और जो क्लेम किया है 3B में और जो हम सेक्शन 16 की बात कर रहे हैं उसमें अगर डिफरेंस आया तो नंबर कैंसिल हो सकता है. देन लाइबिलिटी एज पर 3B एंड जीएसटीआर 1. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि जीएसटीआर 1 के हिसाब से है लाइबिलिटी कितना है. अभी तक हमारा क्या स्टैंड रहा, व्हाट इज द लीगल स्टेटस को ऑफ जीएसटीआर 1? जीएसटीआर 1 इज जस्ट अ outward supply statement. Whatever information is provided there, that doesn't affect the liability because it's not the tax payable. But friends, in this budget they have made certain amendments by which GSTR1 becomes the one of the important document for calculations of the liability, and now it will be linked with 3B. 3B में और GSTR1 में अगर डिफरेंस आया तो यहाँ पर कैंसलेशन के नोटिसेस आने के पूरे चांसेस है. Then we go for the next suspension of the registration. अब ये suspension of the registration का क्या है? The suspension of registration is the first process, cancellation is the second process. तो ये amendment उन्होंने ला इफेक्ट दिया है. तो यहाँ पर उन्होंने सस्पेंशन के पावर्स लिए हैं. सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड एनोमलीज इन व्हाट? जीएसटीआर 3. अभी हम जो 3B और जीएसटीआर 1 भर रहे हैं तो जीएसटीआर 1 पहले भरते हैं, 3B हम बाद में भरते हैं. तो 3B में रेड मार्क भरते हैं, अगर जीएसटीआर रेड मार्क आ रहा है तो ये रेड मार्क अब आगे हमारे लिए वार्निंग का ये रहेगा. अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अगर है तो ये इश्यूज आने वाले हैं. देन 3B एंड 2B, ये जो आईटीसी का मैटर है ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा कि अगर 2B के हिसाब से आईटीसी नहीं है, डिफरेंस है, तो आगे सस्पेंशन के नोटिसेस आएंगे. और ये सस्पेंशन के नोटिसेस कैसे आएंगे? जैसे ही हम रिटर्न भर देंगे 3B चला जाएगा. 3B जाते ही REF 31 ये एक ईमेल के थ्रू हमको इंटीमेशन आ जाएगा कि यू हैव फाइल 3B, देयर इज अ डिफरेंस इन GSTR1 और ITC एज पर 2A, and we have to give them they will give the differences and highlights ki what is the difference,
and within 30 days we have to give the reply through email. So technology will be used. जैसा इनकम टैक्स में फेसलेस हो गया है, वैसा जीएसटी में भी धीरे धीरे ये फेसलेस के तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि we will have to give the online reply that what is the difference between the GSTR1 and 3B, ITC1 and 3B. Few participants are raising the hands. Is there any issue? Or I shall continue. Okay. Other Trivedi ji, hello. Yes, sir. You can Okay. continue, sir. Okay. So why the hands are raised? You are taking care of that, na sir? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Thank you. Then within 30 days we have to reply through email, and if we do not do that, what will be the issue? The registration shall be cancelled. यानी पहले सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन के बाद में ये कैंसलेशन के तरफ जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज अब हमको आगे आने वाला है कि जो भी 3B के रिटर्न हम भरते हैं तो वो 3B के रिटर्न हमारे लिए ये इशू क्रिएट करेगा कि डिफरेंसेस आए. तो गेट रेडी फॉर REF 31. If the differences are not there, then 3B will be okay. It can be said that it's our correct filing. अब ये provisions क्यों लाए? Why they have brought in? Suspension is the first step, cancellation is the second step. Suspension में ये GSTN number block कर देंगे. We cannot generate e-way bills. We will not be able to generate file GSTR1. Then 3B is also in future if we are not able to give them a proper answer. So get ready in future for the REF 31 notices. Then we come down to the next amendment. What is the next amendment? ये rule 36(4). ये rule 36(4) है क्या? तो ये rule 36(4) जो है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी से झगड़ा हो जाता है तो 36 का आंकड़ा है, मेरा और उसका जमता नहीं है, पटता नहीं है, तो वैसा ही ये सीमलेस क्रेडिट के अगेंस्ट हम जा रहे हैं. रूल 36(4). रूल 36(4) के हिसाब से हमको ये देखना है कि जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन ITC आता है 2A के हिसाब से, ये 2A के और 3B से हमको रिकंसाइल करना है, और इसको 1 जनवरी 2021 से जो भी GSTR1 सामने वाला फाइल करेगा, हमारे इसमें वो नहीं रिफ्लेक्ट होता है, तो 5% अनरिपोर्टेड ITC का ही मार्जिन अपने पास रह गया. फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बड़ा अजीब सा सवाल है कि ये शुरू हुआ था 20% से 1 अक्टूबर 10/19 से, फिर इसको 1/1/2020 से 10% कर दिया, अब इसको 1 जनवरी 2021 से 5% कर दिया. We don't know what will happen in 22. ये जाएगा 0, और हो सकता है 23 में ये -5 कि आप ही हमको पैसे दो, ITC लेना है. तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या फ्यूचर में? वी डोंट नो, बट 0 कैन बी द केस कि जो भी मिल रहा है ये इसके हिसाब से फ्रॉम 1 अप्रैल 21 हो सकता है. ये 1 अप्रैल 21 में जब हम जाएंगे, जहां पर ये अमेंडमेंट आ जाएगी सेक्शन 16(2)AA that you can take ITC which is reflected in 2A. At that time section 36(4) will become redundant, क्योंकि section will prevail over rules. Rules cannot override the sections. तो sections में ही अगर आ गया कि ITC अपने को 2A के हिसाब से लेना है, तो ये सारे मैथमेटिकल रिस्ट्रिक्शंस निकल जाएंगे, ये सब फ्यूचर में 0 हो जाएंगे. So this is very important section which we have to right now follow while filing the returns. Many of us are following it, many of us are not following because they say that section 16 doesn't support. After proposal of section 16(2)A, when it get passed in the parliament, then that section will be more powerful, then this rule can be followed.
लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, ये लिटिगेशन कैसे आगे बढ़ेगा कि हमको 36 के हिसाब से आईटीसी लेना है या हमारे बुक्स के हिसाब से लेना है। आज ये एक बहुत बड़ा डिलेमा अपने सभी प्रैक्टिशनर्स के बीच में रहता है। तो हम यही कहते हैं कि आज तो सेक्शन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। गो जेन्युइनली एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ इट इज करेक्ट check and then follow. अगर नहीं है तो then you take the call and accordingly file the returns. Now there is a big impact of this on small taxpayer, क्योंकि जो GSTR1 क्वार्टरली भरता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इन फ्यूचर प्रैक्टिस में हमने अपने क्लाइंट्स को मंथली GSTR1 भरना, यही एक आदत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो सामने वाले को आईटीसी मिलना मुश्किल होएगा और वो टैक्स पेयर बिजनेस से आउट हो जाएगा इफ ही इज नॉट फाइलिंग मंथली GSTR1। अभी QRPM स्कीम आई थी, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। ये स्कीम के अंदर IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आती है। तो ये भी यहाँ पर आएगी कि जो भी IFF में इनवॉइसेस हमारे इसमें से दिख रहे हैं, जो भी सामने वाला फाइल करेगा, जो QRPM में जाएगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे को देखने का कि सामने वाला IFF भर रहा है क्या नहीं। अब हमारे पास में भी ऑफिस के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने QRPM को अप्लाई किया होगा, but let me frankly tell you, this scheme of QRPM is failure for B2B। B2B के केस में ये QRPM फेल है। जहां पर 100% B2C है, वहीं पे ये QRPM चलेगी। So please note, if there are few clients who are doing B2B and B2C, check and then take a call। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि QRPM कब हमको लग गई, क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम थी। 31 जनवरी के पहले हमको बाहर निकलना था। एक जैसा वो कहावत है ना, एक छोटी सी कहानी है कि स्कूल खोलनी थी गांव के अंदर, अब किसको हम ले किसको नहीं ले स्कूल में, तो पूरे गांव के लोग बच्चे वहां पे भर्ती कर दिए कि चलो रे भाई आपको सबको स्कूल में आना है। फिर बाद में बोला कि चलो जिनकी जिनकी पढ़ाई हो गई अब वो सब बाहर निकलो, जिनको स्कूल के बाहर जाना है चले जाओ। तो वैसा ये QRPM स्कीम है कि हमको पहले सबको अंदर डिफॉल्ट माइग्रेशन कर लिया, अब वो बोलते हैं कि आपको बाहर निकलना है तो जाओ। कई क्लाइंट्स तो अभी ये QRPM में आ भी गए और 13 तारीख के पहले IFF नहीं भरते हैं हम, तो ये IFF बाद में जाता भी नहीं है, आगे GSTR1 ही जाना पड़ेगा। तो क्वार्टरली GSTR1 फाइल करने वालों को बड़ा तकलीफ होने वाली है। So we have to note that and accordingly check it. Now we come down to the next, that is the rule 59। ये रूल 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको एक बार नोट करके रख ले अपने पास में, क्योंकि अब GSTR1 and 3B ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है। GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे अगर 3B नहीं गए 2 महीने के, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स वो GSTR1 नेक्स्ट महीने का नहीं फाइल कर पाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर का, अगर पिछले क्वार्टर का 3B नहीं गया है तो। फिर जो मंथली बिग टैक्स पेयर्स है उनके पिछले महीने का 3B नहीं गया है तो नेक्स्ट महीने का GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब इंटरकनेक्ट हो गए हैं GSTR1 and 3B। अब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं GSTR1, अब हम लेते हैं जैन, फेब एंड मार्च। अगर मैं 1 फाइल करता हूं, यहाँ पर 3B नहीं फाइल करता हूं, फेब्रुवरी का 1 फाइल करता हूं, 3B नहीं फाइल करता हूं, तो ये केस में मैं मार्च का 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई हैव नॉट फाइल 3B। व्हाट विल हैपन वाइस वर्सा? I file 3B of January, I don't file 1, रिवर्स करते हैं हम, I file 3B and I doesn't file the GSTR1। What will happen? तो यहां पर आपने देखा कि सस्पेंशन के नोटिसेस आ जाएंगे।
वो रेड जाएगा 3B के अंदर कि 3B में आपने लाइबिलिटी बताई है, GSTR 1 नहीं फाइल की है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड 3B, सो REG 31 अपने को नोटिस ईमेल के थ्रू आ जाएगा. सो henceforth both have to go hand to hand, and my humble request is that कि अपने ऑफिसेस के अंदर अब हमने GSTR 1 के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट करके उनके 1 फाइल करना चाहिए टाइमली. जो भी 11 तारीख को हमको फाइल करना है, 13 तारीख के पहले फाइल करना है, वो कर लेना चाहिए. नहीं तो सामने वाले को ITC नहीं, अपने को भी 3B में तकलीफ. तो ये अब आगे फ्यूचर प्रैक्टिस, अगर लिटिगेशन फ्री करनी है, कंप्लायंस में टेंशन कम करना है, तो फाइलिंग GSTR 1 टाइमली इज द की. 3B तो करनी है, नहीं करेंगे तो आगे तकलीफ है ही. Then we come down to the 7th change of new rule 86B. What is this 86B? कई अपने CA प्रोफेशनल्स यहाँ पर होंगे आज भी अपने सेशन में, जिनको याद होगा एक्साइज के अंदर PLA स्कीम थी. ये PLA स्कीम के अंदर कुछ पैसा भरना पड़ता था जो कि हम यूज नहीं कर पाते थे. तो वैसा ही अब ये आ गया कि 1% टैक्स टू बी पेड बाय कैश with effect from 1st January 2021. But बड़ा इंटरेस्टिंग है ये रूल जो आया है. इफ वी स्टडी दिस रूल तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ड्राफ्टमैन कैसे सोचता है लॉ का ड्राफ्ट करने वाला, और कैसे वो कनेक्ट करता है. वो हम एक यहाँ पे किस्सा देखेंगे. यू विल ऑल्सो एंजॉय दैट. अब पहले समझ ले क्या है ये कि that person can use only क्रेडिट लेजर अप टू 99%, यानी जो भी ITC है वो 99. अभी हमने सिमलेस ITC छोड़ दिया है, अब हम ITC रोक रहे हैं सब लोगों का. जो GST लाया था तब हमने अलग बात करी थी, अब हम अलग बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा 1% वाला सेक्शन 86B. ये रूल 86B किसको एप्लीकेबल होगा? जिसका टैक्सेबल सप्लाई है 50 लाख के ऊपर, Jan 21 से आगे 50 लाख के ऊपर टैक्सेबल सप्लाई है, और इसमें नील और एग्जाम को हमको माइनस कर देना है. तो हमारा टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर है तो ही ये एप्लीकेबल है. अब जैन में मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपीस है, तो ये मुझे एप्लीकेबल हो गया. अब ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा? तो मुझे देखना है कि इनकम टैक्स पेड ऑफ लास्ट 2 years. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो ड्राफ्टमैन ने कैसे डिजाइन किया है ये रूल को, आप समझो कि किसका इनकम टैक्स, प्रोप्राइटर का तो हम समझ सकते हैं, कर्ता इन केस ऑफ HUF समझ सकते हैं, MD मैनेजिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी. अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. कंपनी को GST नंबर अलग है, उसको पैन नंबर अलग है, GST के रिटर्न कंपनी के जाते हैं, पैन भी अलग है, इसके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न भी कंपनी का जाता है. तो कंपनी का नहीं देखना है अपने को 1 लाख रुपया पिछले 2 साल का, किसका देखना है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को देखना है. मुझे ये आश्चर्य लगता है कि भाई जो भी GST भर रहा है वो लीगल पर्सन अलग है, कंपनी डायरेक्टर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, LLP अलग है, उसके पार्टनर्स अलग है. तो जो GST नंबर है उसका जो रिटर्न जाता है वो चेक करो. तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स और उनका चेक करना है. बड़ा ही अजीब सा ये एक ड्राफ्टिंग हुई है यहाँ पर. एंड हु विल डू दिस? तो आगे तो टैक्स पेयर को ही सब करना पड़ेगा, ऑडिटर्स नहीं रहेंगे, तो हु विल डू दैट? तो ये सेल्फ कंप्लायंट सिस्टम कब तक चलेगी ऐसे अगर रूल्स बनेंगे तो? फिर 1 लाख के ऊपर का अगर GST का रिफंड ले चुके हैं तो ये 1% का नहीं एप्लीकेबल होगा. फिर पुराने इसमें अगर 1% पे कर दिया है कैश लेजर से तो एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यूमुलेटिव मींस व्हाट? हमने जनवरी के अंदर दिया एक 25,000 रुपया, तो ऑलरेडी वी हैव पेड 1% एंड अबव. तो अब ये इश्यू आ जाएगा कि हमारे को जब फरवरी का रिटर्न हम देखेंगे, फरवरी का, तो उसमें जनवरी में पे किया है तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव बेसिस पे ईच मंथ. और मेरा अब एक छोटा सा
कौन इसमें जेन्युइनली फंसेगा? ये 1% वाली 86B में। नंबर होलसेलर्स, फ्रैंचाइजीज, जहां पर जीपी कम रहता है, जहां पर स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्रेडिट नोट दिया जाती है, जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स है, जैसे टायर कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, एफएमसीजीज, जहां पर 100 रुपए में माल बेचा गया, फिर वो सामने वाला उसको 95 रुपीज में बेचता है, उसको 10 रुपए का क्रेडिट नोट आता है जिसपे जीएसटी लग के नहीं आता, वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रहती है. सो देर आर फ्यू cases where genuinely this will create difficulty. One more case is if there is a new manufacturer, there is a ITC of say plant and machinery and capital goods, and in the first month itself the turnover crosses 50 lakh rupees because it's a new company. Then what we have to check whether its managing directors, whole-time directors have paid taxes for the last 2 years each for 1 lakh and rupees more, so it will not be applicable. तो ये ऐसा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. दो चीजें इसमें और ध्यान रखिए. टीडीएस डिडक्शन अगर कर रहा है कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेड बाय कैश बिकॉज इट्स एन एडवांस पेमेंट्स ऑफ जीएसटी थ्रू कैश, दो टीडीएस हैज बीन डन बाय द रेसिपिएंट. सेकंड, आरसीएम विल नॉट बी कवर्ड इन दिस, क्योंकि आरसीएम हमको कैश से ही पे करना पड़ता है. दैट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस 1% ऑफ टैक्स लायबिलिटी. प्लीज चेक एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई दिस सेक्शन. देन वी कम डाउन टू द लास्ट चेंज विच इज द प्री बजट चेंजेस, जो हम बोलते हैं 1 जनवरी से जो आए. उसके अंदर ये रूल 138 के अंदर अमेंडमेंट आई, दैट इज ऑफ ई वे बिल. एक दिन के अंदर ई वे बिल अगर है तो उसका जो लिमिट था वो 100 किलोमीटर था. गाड़ी को, ट्रक को 100 किलोमीटर ट्रेवल करना था एक दिन में, उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया है. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दिस? अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स? हमारे ऊपर एक ही इम्पैक्ट हुआ है. जब भी आप हाईवे पे हो, सामने से ट्रक आई तो बाजू में हट जाना पहले ही, क्योंकि उसके पास ई वे बिल है, वो डबल स्पीड से वो भाग रहा है. पहले उसको 100 किलोमीटर ट्रैवल करने थे, अब उसको 200 किलोमीटर करने हैं. सो these amendments have brought in, this will affect the transporters. They have to give delivery in the time, but that kilometers have increased by double. So that is the case. Validity of e-way bill छोटा हो गया है kilometers बढ़ाने से. So that is the point which we have to keep in mind. Now we come down to budget 2021 provisions. तो ये अब इम्पोर्टेंट है. बड़े आशा से हम देख रहे थे मैडम जी के पास कि क्या आता है, और अब देखो कि क्या उसमें हमको मिला है, क्या नहीं मिला है. वैसे प्रोफेशनल्स के लिए तो जो भी था वो चला गया, मिला तो कुछ भी नहीं, जो था वही गया. बट नेवरदलेस माय लास्ट स्लाइड्स एंड माय लास्ट सेशंस of the subtopic of this session is on that. Please do listen to that session. You will really have some insight when you do the audits of 1920. Now we come down to the budgeted amendment, that is section 7. Section 7 के अंदर क्या amendment आई है? Section 7 is the scope of supply. Friends, this is like a heart surgery, क्योंकि section 7 को हाथ लगाना इतना आसान नहीं रहता है. Because if a transaction is covered in the section 7, then only GST will be levied. Now what they have done, they have brought in from 1st July 2017 retrospective amendment in GST in section 7. सेक्शन 7 में दो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है. एक फरवरी 19 के अंदर हुई थी, जहां पर उन्होंने 1A सेक्शन लाया था कि बिजनेस अगर है तो ही सप्लाई ट्रीट होगा. देन 1 जुलाई 2017 को ये नया अमेंडमेंट लाया. अब ये नया अमेंडमेंट क्या है? 1AA 71AA के अंदर एक नया एक्टिविटी ऐड कर दिया. The activities or a transaction by a person other than individual to its member or constitutions or vice versa. What is the impact of this? Mutuality concept has gone. Supreme Court has given a ruling that Lions Club, Rotary Club, when they provide services to the members, the mutuality concept will apply and GST will not be leviable because that is not covered in the scope of supply. But now they have brought in the amendment retrospective effect, so mutuality concepts is done.
gone. We have to see how the litigations will take shape up, because one more important thing is the concept of business. Whether the Rotary Club and Lions Clubs are doing business, they are working under mutuality. Now the government has brought in that mutuality is covered in the scope of supply, but there will be always a litigation that say a club is providing services to the members or not. Say Lions Club organizes a exhibition, business exhibition, then it can fall under the business activity. But there is a social, religious clubs also. Some are the charitable clubs. They are doing donations. कोरोना में भी कोविड्स में भी हेल्प किया है सोसाइटी को. तो यहाँ पर ये झगड़ा अब और बढ़ जाएगा. पर गवर्नमेंट, the GST Act, they have amended from 1st July 2017 and they brought in the mutuality concept in the scope of supply. पहले ये शेड्यूल 2 को था आखिरी में, और शेड्यूल 2 में ये बताया गया था कि whether it is a services or goods. तो ये शेड्यूल 2 से निकाल के अब इसको सेक्शन 7(1) के स्वरूप में दे दिया है. तो it has brought in into the scope of supply. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आगे, बट प्लीज चेक द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन एवरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द क्लब. देन वी कम डाउन टू सेक्शन 16. ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ रही है सेक्शन 16 की, जो हमको ध्यान में रखना है. एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी. ये एक ऐसी अमेंडमेंट आ जाएगी अब सेक्शन 16 2AA, जिससे जो 2A में अमाउंट दिख रही है वही फाइनल आईटीसी रहेगा. सो लेट्स रीड दिस सेक्शन वन बाय वन, the words, so we can understand this amendment. The details of the invoice debit note, यानी डेबिट नोट भी और इनवॉइस भी, referred in clause A of section 16(2). section 16(2) क्या बोलता है कि whenever you must have an invoice, the goods must be received, the payments are made. तो वो सेक्शन 16(2) बोलता है. अब वो सेक्शन 16(2) में A क्लॉज, यानी the invoices and debit notes on the which we are entitled for ITC shall be furnished by the supplier. यानी ये सप्लायर के ऊपर काम दिया है कि वो GSTR 1 फाइल करे, आउटवर्ड स्टेटमेंट. एंड so and means there is two conditions. One, the GSTR 1 is filed by the supplier and such detail has been communicated to the recipient for such invoice and debit notes as manner specified in rule 31, in section 31. So what is the aspect? There are two aspects of this amendment. One, supplier duty, and one is the GSTN, जो GSTN नेटवर्क है उसका ड्यूटी. क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है the recipient will be communicated. So whose duty is this to communicate? It is the GSTN network duty to communicate. What is there in the hands of the recipient to do that it gets reflected in 2A? There is nothing in the hand of the recipient. There is no mechanism, there is no machinery कि मेरा ITC मेरे 2A में दिखे. So this is very important point, and this will be the crux of litigation in future, because there is no machinery provided for the recipient to know what the supplier is doing and what the GSTN is doing. तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट है. एक ने सप्लायर ने काम करना है कि GSTR 1 भरना चाहिए, दूसरा GSTN हमको बताएगा 2A में. अगर सप्लायर ने नहीं भरा तो GSTN पे तो दिखेगा ही नहीं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, तो हमको ITC फ्यूचर में मिलेगा नहीं. भले ही हमारे बुक्स में आ गया है, गुड्स है, मेरे पास इनवॉइस है, मैंने पैसे दे दिए, 180 दिन में दे दिए, रिटर्न भी टाइमली फाइल कर दिया है, ऑल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 आर कंप्लाइड, बट द सप्लायर हैज नॉट फाइल GSTR 1. तो क्या होगा? अब what is the role of technology in this and why this amendment has been brought by the government? ये अगर हम देखेंगे तो बड़ा ही एक अजीब सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इन फ्यूचर ई इनवॉइस इज गोइंग टू बी
द की। आज 100 करोड़ के ऊपर ई इनवॉइसिंग है, आगे चल के ये 5 करोड़ तक भी आ जाएगा और अक्टूबर 2021 तक या अगले साल तक ये B2B सारे ट्रांजैक्शन हो आ जाएगा। When e-invoice is generated, it will automatically reflected in GSTR1 of supplier and automatically get reflected in the recipient's 2A. So this section will be a more empowering section once e-way bill, e-invoices get settled for all B2B transaction. जब तक ये नहीं होगा तो सप्लायर को GSTR1 मैन्युअली फाइल करना है, मतलब मैन्युअली मींस he has to take the data from the system of his software and then upload it into the GSTN, and then GSTN will process and put it into 2A. But the e-invoicing is done, then it's an automated process. So to make this section successful, e-way bill e-invoicing for B2B will be the key. जब तक ये नहीं होता तो litigation चलने वाले हैं, because the recipient doesn't have any machinery to check whether that ITC is reflected in 2A, and there is no default of recipient. It's the supplier's default or it's the GSTN network default for non-reflection in 2A. ये भी हो सकता है। देखो आपने 18, 19, 17, 18 के ऑडिट्स किए तो देखा होगा कि टेबल 8 जो 2A का आ रहा है उसमें, और हम 2A अलग से जो ले रहे हैं, GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेटेड हुए हुआ 2A का अमाउंट और हमारा एक अलग से 2A का स्टेटमेंट, इसमें डिफरेंसेस है। तो ये भी एक इशू हो सकता है आगे फॉर लिटिगेशन, सो वी हैव टू चेक, बट दिस विल कम व्हेन द बिल गेट पास्ड। नाउ GST ऑडिट 35(5) removed. We will not discuss more because we have a separate session on this. Annual return self certification mode में चलेगा। Self certification mode means what? Taxpayer खुद ही करेगा, खुद ही certify करेगा और उस हिसाब से ये जाएगा। Now how they will reconcile it with the balance sheet, we don't know how the taxpayer will file this. Actually we are doing this, we are the people who are doing this, but the government think that it's the taxpayer that he will do it. Let's see what will be the future. Now we come down to section 15. सेक्शन 50 को ये अमेंडमेंट जो आई है ये रिट्रोस्पेक्टिव आई है 1 जुलाई 2017 से। हम सबको पता है कि इंटरेस्ट जो पे करना है ये मुझे नेट कैश लायबिलिटी पे ही भरना है, वही ये सेक्शन 50 है। बट रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सेप्ट सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर 73, 74 डाल दिया। मींस व्हाट, अगर कोई सप्रेशन है, कोई मिस स्टेटमेंट है, नोटिस आई, उसके बाद में रिटर्न फाइल किया तो ये इंटरेस्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। क्रेडिट के ऊपर अगर हमने बाद में एडिशनल टैक्स पे किया, कैश से पे किया या क्रेडिट से किया तो भी इंटरेस्ट आएगा। तो वॉलंटरी अगर कंप्लायंसेस है और अगर नेट लायबिलिटी कैश में पे की है, वो लेट है तो ही इंटरेस्ट लगेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को और आगे इस सेक्शन के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। इट्स अ रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। Then come down to the next amendment of section 73. Section 74 का अमेंडमेंट है। सेक्शन 74 क्या है? विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, फ्रॉड, यानी सारी निगेटिव चीजें अगर कोई अपना टैक्स पेयर करेगा। तो अब इसके अंदर क्या चेंज कर दिया, अब इसमें उन्होंने 29 एंड 23 सेक्शंस के प्रोसीडिंग्स को अलग कर दिया। पहले ऐसा था कि 122 की पेनल्टी, जो पेनल्टी इन सर्टन केसेस ऑफ ऑफेंस, 125 का पेनल्टी, जनरल पेनल्टी 25,000 रुपए का, ये भी कंक्लूड हो जाती थी जब 74 के असेसमेंट्स या 74 का प्रोसीडिंग कंप्लीट होती थी। अब उन्होंने 129 अलग कर दिया और 139 अलग कर दिया। सो दे हैव केप्ट इट ओपन। व्हाट इज दैट? डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड जो चेक पोस्ट के ऊपर, ट्रांजिट के ऊपर अगर गुड्स पकड़े जाते हैं, कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, इसको भी अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 74 के प्रोसीडिंग्स अलग चलेंगे, 129, 130 के भी प्रोसीडिंग्स अलग चलेंगे और अब पेनल्टी को और इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है, स्कोप्स वाइडन कर दिए हैं। जब हम आगे के अमेंडमेंट देखेंगे तो ध्यान में आएगा।
नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रपोज्ड इज इन सेक्शन 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ गई है। छुपके से इन्होंने सेल्फ असेस टैक्स का जो सबसेक्शन है, वो जो एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपांड कर दिया। व्हाट दे हैव डन वेरी cleverly, they have now changed the expression of self-assessed tax, and they included the supplies which are shown in GSTR 1 but not reflected in 3B. So now whenever GSTR 1 are filed and 3B are not filed, the GSTR 1 will also be self-assessed tax amount. और 3B में और GSTR 1 में अगर डिफरेंस आ गया तो वो सेल्फ असेस टैक्स में इंक्लूड हो जाएगा। आज तक का क्या प्रोविजन था कि GSTR 1 को कोई लीगल बेस नहीं था, उसमें कितना भी आप सेल बता दो उतना पैसा आपसे कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर नहीं आता था। देयर वेर मेनी टैक्स पेयर इन मेनी ऑफिसेस, हर एक के पास में कोई ना कोई ऐसा होगा क्लाइंट कि जो GSTR 1 भरो भरो बोलता था, 3B नहीं भरता था क्योंकि पैसे नहीं है। अब वो GSTR 1 भर दिया तो उतनी लायबिलिटी आ जाएगी क्योंकि आप 3B से वो लिंक्ड है। अगर 3B में हमने नहीं भरा तो GSTR 1 का जो लायबिलिटी बताया है वो सेल्फ असेस टैक्स में भी पकड़ा जाएगा, नोटिसेस आएगी, व्हाई GSTN शुड नॉट बी सस्पेंडेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो GSTR 1 एंड 3B आर लिंक्ड। जो अभी रेड मार्क आ रहा था वो अब रेड मार्क को और भी स्ट्रांग हो जाएगा सेक्शन 75 के थ्रू, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट जब आएगी तब। नेक्स्ट इज सेक्शन 83 अमेंडमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। फ्रेंड्स, this is the most important amendment of the budget, I think so, from the officers point of view. They are enlarged the power of the officers and अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी बैंक अकाउंट को अटैच करने के पावर बहुत बढ़ा लिए उन्होंने। अब इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जस्ट सी इन शॉर्ट दिस टेबल। पहले बैंक अकाउंट अटैचमेंट्स के जो पावर्स थे ये नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए थे, प्री अमेंडमेंट में अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए थे, स्पेशल केसेस ऑफ समरी एक्स पार्टी असेसमेंट में थे, और कुछ पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च सीजर के अंदर थे। फिर 73 एंड 74 में थे जहां पे सप्रेशन ऑफ फैक्ट, विलफुल मिसस्टेटमेंट है। पर अब बजट के बाद क्या होने वाला है? बजट के बाद में ये पूरे पावर्स ये चैप्टर को ही लागू कर दिए हैं, असेसमेंट्स के पूरे चैप्टर्स के प्रोसीडिंग्स को, इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट के सारे प्रोसीडिंग्स को, डिमांड एंड रिकवरी के सारे प्रोसीडिंग्स को। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बैंक अकाउंट अटैचमेंट विल बी ऑटोमेटिक। सस्पेंशन के नोटिसेस आए, नहीं जवाब दिया, कैंसलेशन ऑफ GSTN कर दिया, बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे। एक जो अपर लेवल पे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आ रहा है, प्लीज गिव योर 2 मिनट सीरियस थॉट ऑन दिस। आगे जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है वो ऐसा दिख रहा है, 1 पैन, 1 आधार, 1 मोबाइल नंबर एंड 1 बैंक अकाउंट, 1 GSTR नंबर। मल्टीपल GSTN नंबर है तो मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा SBI में या बड़े नेशनलाइज बैंक में आप अगर किसी क्लाइंट्स के लोन के लिए गए होंगे या लोन्स का कोई जा रहा है तो वो बोलते हैं कि करंट अकाउंट हमारी यहीं खोलना पड़ेगा, आपको सारे करंट अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। उनके पास, बैंकर के पास लिस्ट ही मिल जाती है कि आपके इतने सारे करंट अकाउंट है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग number of bank accounts to 1 for the taxpayers. आपने देखा इनकम टैक्स के अंदर भी 75 इयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स के रिटर्न भरने से एग्जम्पशन दिया। कब दिया? एक ही बैंक अकाउंट रहे, उसमें पेंशन, उसमें FDR, उसमें इंटरेस्ट, तो वो बैंकर TDS टैक्स काट के भर देगा, आपको रिटर्न नहीं भरना है। तो स्लोली गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग द बैंकिंग डेटा टू द 1 बैंक अकाउंट। अगर वो हो गया तो GST में डिफॉल्ट किया, इनकम टैक्स में डिफॉल्ट किया, बैंक अकाउंट अटैच किया, तो वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, उसको तो टैक्स के लिटिगेशन पड़तल खाएंगे नहीं। तो ये पावर्स बढ़ा लिए है और इसके थ्रू और भी पावर्स आ गए।
सप्लायर का बैंक अकाउंट अटैच करेंगे फेक इनवॉइसिंग में, रिसिपिएंट का करेंगे, ट्रांसपोर्टर का भी कर सकते हैं। अगर गलत बगैर ई वे बिल का माल लेके जाएगा, कोई उनको हेल्प कर रहा है ये सब करने के लिए, तो एम्प्लॉइज के भी बैंक अकाउंट्स वो अटैच कर सकते हैं। तो वास्ट पावर्स उन्होंने ले लिए है टू रिकवर दी मनी। नेक्स्ट अमेंडमेंट इन सेक्शन 107, यहाँ पर पेनल्टी का 25% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर हमको आगे अपील करनी है तो। वो सेक्शन 129 जो है उसके लिए डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स, उसके लिए ये आ गया है। सो अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा? चेक पोस्ट के ऊपर गाड़ी पकड़ा गया, ई वे बिल नहीं है, तो आगे हमको पेनल्टी भरना है 200%। नाउ दिस इज वेरी बिग चेंज because earlier penalty was 100%, now the penalty will be 200%. But what is the another change? पहले टैक्स भी चेक पोस्ट पे भरने लगाते थे, अब वो टैक्स और इंटरेस्ट चेक पोस्ट पे नहीं भरने लगाएंगे, वो बोलेंगे पेनल्टी भरो। क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल इशू आ रहा था कि डीआरसी से टैक्स भरो, इंटरेस्ट भरो, फिर 3B में हम वो बता नहीं पा रहे थे ट्रांजैक्शन, और अब ऐसा है कि 3B और GSTR 1 में डिफरेंस आया तो नोटिस आएंगी, तो अब उन्होंने चेंज कर दिया। 200% पेनल्टी ऑफ टैक्स यू पे, टैक्स और इंटरेस्ट आपका रेगुलर असेसमेंट में चलता रहेगा, यू पे इट इनटू 3B। अब गाड़ी पकड़ी गई, ई वे बिल नहीं है, तो 200% टैक्स भरना है, ये पेनल्टी भरनी है। दिस इज द न्यू चेंज एंड दिस इज वेरी बिग चेंज। और अगर इसकी अपील करना है तो 25% प्री डिपॉजिट ऑफ द पेनल्टी नीड्स टू बी डन। सो दैट इज द न्यू proposed amendment in section 129. 7 days are given for issue of notice, गाड़ी पकड़ी गई तो, और 7 दिन के अंदर उसको ऑर्डर भी करना है, तो टोटल प्रोसीडिंग्स 15 दिन में क्लोज होना है, फिर उसके बाद में अपील में चले जाइए। फिर एक इंपॉर्टेंट ला लिया इन्होंने कि अब ट्रांसपोर्टर को भी पेनल्टी लगेगा, मिनिमम 1 लाख रुपए का। पहले ऐसा था, गाड़ी पकड़ी गई तो वो ट्रांसपोर्टर को कुछ नहीं था कि भैया ये माल उतार लो, उसको टैक्स लगा दो, उसको पेनल्टी लगा दो, ट्रांसपोर्टर छूट जाता था। अब वैसा नहीं रहेगा, अगर गलत ई वे बिल्स या बगैर ई वे बिल का गया तो ट्रांसपोर्टर को भी पेनल्टी आगे लगेगी, तभी उसकी गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। इट इज अ गुड अमेंडमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स आर द पर्संस हु से दैट कोई चिंता मत करो, मैं माल पहुंचा दूंगा बगैर इनवॉइस का, बगैर ई वे बिल का। अब वो सिस्टम्स थोड़े बंद हो जाएंगे। Then we come down to section 130 amendment, confiscation of goods and penalty leviable accordingly. तो यहाँ पर notwithstanding anything to the act, ऐसा section 130 चालू होता था, अब उसको where डाल दिया। मतलब क्या कि बाकी जो सारे प्रोसीडिंग्स है, बाकी जो पेनल्टीज है, वो भी इनको एप्लीकेबल हो जाएंगी कॉन्फिकेशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग जो था वो अब निकाल दिया, तो सारे बाकी अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है, दे विल आल्सो कम इनटू along with section 130 contravention. Next amendments is proposed in section 151, ये power to collect statistics है, तो हमारे लिए ज्यादा important नहीं है। फिर बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी एक चीज आ गई है कि कोई आरटीआई करेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको इंफॉर्मेशन देने के पहले। फिर पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टर जुडिशनल कमिश्नर के पावर और बढ़ा दिए, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, तो ये ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, अभी सीजीएसटी एक्ट के प्रपोजल्स खत्म हुए, अब चलते हैं आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में जीरो रेटेड सप्लाईज जो एसईजेड को सप्लाई करेंगे, सप्लायर कौन है? मान लो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, हु इज द रेसिपिएंट? एसईजेड। तो जो भी सप्लाई हम एसईजेड को करेंगे, ये फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस का ही होना चाहिए, तभी वो जीरो रेटेड सप्लाईज माना जाएगा। तो अब हमारे को क्या केयर लेनी पड़ेगी, जो एसईजेड कमिश्नर है, वो जो एसईजेड को इशू किया है रजिस्ट्रेशन, वहां पर प्रेसिफाई किए हैं ऑथराइज ऑपरेशंस, तो अंडरटेकिंग भी लेनी पड़ सकती है हमको, अगर हम एसईजेड को माल बेच रहे हैं तो, कि भैया ये जो मैं तेरे को माल बेच रहा हूँ, मेरे लिए ये जीरो रेटेड सप्लाईज है, तो तू उसको ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका अंडरटेकिंग दे, तभी ये जीरो रेटेड सप्लाईज माना जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट
for supplies to SEZ, one has to keep in mind. Then section 16 of IGST Act, refund का amendment है. पहले हमको लगा कि ये चलो ठीक है, पर बाद में गौर से पढ़ा तो पता चला कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अमेंडमेंट्स हो सकती है इन फ्यू केसेस. व्हाट इज द अमेंडमेंट? कि एक्सपोर्ट्स करते हैं टैक्स पेड करके गुड्स को, तो हम रिफंड लेते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज के केस के अंदर. पर अब आगे ये सेल प्रोसीडिंग्स विद इन 6 मंथ्स अगर नहीं आए फेमा एक्ट के हिसाब से, तो बाद में हमको इसको रिफंड करके रीडिपॉजिट करना पड़ेगा. सो टू सिंप्लीफाई, व्हाट इज द एग्जांपल कि मैंने एक्सपोर्ट्स किया, आज पैसे भर दिए और बाद में उसका 1 महीने के बाद में रिफंड भी ले लिया, पर 6 महीने के अंदर मुझे ये एक्सपोर्ट्स के रिलीज नहीं हुआ, पैसा आया नहीं इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से, तो 6 महीने खत्म होते ही ये रिफंड मुझे वापस दे देना पड़ेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन का अमेंडमेंट है आईजीएसटी एक्ट वाला, जो हमको ध्यान में रखना है. नाउ समरी ऑफ द चेंजेस व्हिच आर प्रपोज्ड ऑफ द बजट. तो ये फर्स्ट अपना एक सब टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है आज के सेशन का, कि इंटरेस्ट हमको नेट पे ही पे करना है कैश पेमेंट के ऊपर. रिट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 17 से अमेंडमेंट है which we have already noted. Then ITC जो है 2A के हिसाब से ही अब आगे रिफ्लेक्ट में जो होगा वही मिलेगा. सेक्शन 16 2AA, जीरो रेटेड सप्लाईज का फॉरेन एक्सचेंज में रिमिटेशन आना जरूरी है. अगर रिफंड क्लेम किया होगा, नहीं आए तो वापस रीडिपॉजिट करना पड़ेगा. म्यूचुअलिटी कंसेप्ट्स को गो अवे कर दिया है, डेफिनेशंस में ला लिया है सेक्शन 7 में. फिर प्री डिपॉजिट 25% करना पड़ेगा हमको अगर हम अपील्स में जाते हैं, क्योंकि 200% पेनल्टी लगेगी अब ई-वे बिल्स की और उनके कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स की, और उसका अपील करना है तो फिर 25% भरो. फिर जीएसटी ऑडिट एबॉलिश किया है, पर अपना नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर हम गौर करेंगे, हाउ वी कैन ब्रिंग बैक इट. देन वी कम डाउन टू दी नेक्स्ट की एनुअल रिटर्न्स कौन से क्लास को एग्जाम करना है, ये भी पावर्स कमिश्नर को दे दिए गए हैं अंडर द एक्ट. तो ये सारे बजट्स के अपने अमेंडमेंट्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज द जीएसटी ऑडिट 1920. It's my humble request to all the GST auditors of 1920 to please go through the complete process of 1920 audit and do qualify 9C. ये क्यों करना है? Why we want to give the qualified 9C? We will now see, and what are the changes? We will see it. So this is one of the requests from our all ICAI officials. हम सारे काउंसिल मेंबर्स और ये सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि सारे 1920 के जितने भी जीएसटी ऑडिटर्स हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचाए. लगभग 15 लाख के ऊपर 9C जाएंगे, 24-25 लाख तक ये 9 जाने वाले हैं. आज के डेट तक कुछ हजारों में ही 9 और 9C फाइल हुए हैं 1920 के. बहुत सारे 9C बाकी है. तो आज भी अपने हाथ में है कि 9C के थ्रू हम गवर्नमेंट को बताएं कि what we are doing in GST audit and why it should not be scrapped. So let's go and do it. So please check our discussion and then take a call. नोटिफिकेशन नंबर 79 ऑफ 15 अक्टूबर 2020, ये सब लोगों ने प्रिंट लेके अपने वर्किंग पेपर्स में लगा के रख ले, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नंबर 11 है जीएसटीआर 9 रिलेटेड और इंस्ट्रक्शन नंबर 12 है जीएसटीआर 9C रिलेटेड. क्योंकि कई बार कश्मकश हो जाता है कि क्या ऑप्शनल है क्या नहीं है, इसका क्या नोटिफिकेशन है. तो 79 ऑफ 15 अक्टूबर 2020 इज द most important notification which everybody should keep on the record when doing the audit of 1920. अब टर्नओवर का लिमिट ये 2 करोड़ के ऊपर 9 है और 9C के लिए 5 करोड़ के ऊपर ही है. तो जो हमारा पहले लिमिट था वही लिमिट कायम है 18-19 का 1920 में भी. तो प्लीज नोट दिस एंड डू अकॉर्डिंगली. देन नाउ कम टू जीएसटीआर 9. तो ये जो जीएसटीआर 9 का फॉर्म है
माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये जो टेबल नंबर 4 है इसमें अब हमको एज इट इज इंफॉर्मेशन भरनी चाहिए। पहले हम पूरा 9 के अंदर ही सब चेंजेस कर लेते थे और 9C हम अनक्वालिफाइड देते थे, वहां पर हम कोई भी एडिशनल टैक्स पेमेंट नहीं बताते थे। मैक्सिमम सीएस ने हमने सबने यही किया है, बट नाउ दिस इज टाइम टू चेंज आवर सेल्फ। जीएसटीआर 9 जैसा आया है वैसा जाने दो, और जो भी एडिशनल टैक्स आ रहा है, आईटीसी रिवर्सल आ रही है, उसको 9C में शो करे। पहले हम क्या करते थे, जीएसटीआर 9 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट से इसको टैली करते थे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने लिए क्या था, टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 माइनस टेबल नंबर 11, ये अपना फॉर्मूला था। तो हम टेबल नंबर 4 में चेंजेस कर लेते थे बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करने के लिए। अब क्या करना चाहिए, जो 3B की फिगर्स है वो हिसाब से टेबल नंबर 4 बना ले। जो भी एडिशनल टैक्स आ रहा है वो जीएसटीआर 9 में ना बताए, टर्नओवर वो 9C में बताए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, सब लोग नोट डाउन करो कि हमको 9 के अंदर कोई भी एडिशनल टैक्स पेमेंट बताना नहीं है इन द ऑडिट। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी पहले सितंबर के पहले बता दिया, जैसा 1920 का हम कर रहे हैं, आपने सितंबर 20 के पहले ही वो ट्रांजैक्शन ले ली है नेक्स्ट ईयर में, फिर उसको आपको टेबल नंबर 10-11 के अंदर जो भी शो करना है वो जरूर करें। पर टेबल नंबर 10-11 अब हमको टालना चाहिए यूज करने का। हमको जो भी करना है वो हम 9C के थ्रू करें, फिर डीआरसी से पेमेंट करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है, हमने प्रेसिडेंट सर से भी बात करी, निहार सर से भी मेरी बात हुई थी कि सर हमने सब सीएस को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि 1920 के ऑडिट्स के अंदर आप क्वालिफिकेशन देके वहीं से टैक्स पेमेंट कराएं, जिससे गवर्नमेंट के पास में डेटा जाएगा कि 9C से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। आज हम पूरा के पूरा रेवेन्यू मैक्सिमम 9 से भरते आए, इसके लिए ये दिक्कत हुई 17, 18, 18, 19 में। सो टेबल नंबर 4 अब हम 3B के हिसाब से ही रखेंगे। फिर जो ऑप्शंस थे 17, 18, 18, 19 में कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, नेट ऑफ करके बताएं, वही अब 19-20 को भी है। तो जो पहले टेबल नंबर 4 में ऑप्शनल था वही टेबल नंबर 4 में 19-20 को भी ऑप्शनल है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक ही है कि जो पहले हम करते आए थे, जो इश्यूज थे वो इश्यूज कायम है। हम सब प्रैक्टिशनर्स में सीएस के अंदर एक बड़ा ये खास रहता है कि किसको कोई इश्यू आया तो हम दूसरे को फोन लगा के पूछते, अरे भाई तेरे को भी ये इश्यू है क्या, फिर और किसको फोन लगाते, तेरे को भी ये इश्यू है क्या, तो फिर बड़ी खुशी हो जाती कि चलो भाई मुझे जो तकलीफ है वो उसको भी तकलीफ है, इसका मतलब वो तकलीफ नहीं है। सो वॉट एवर इश्यूज वेर देयर फॉर 17, 18, 18, 19, they continue for 1920. There is no new issue in table number 4. So let's go ahead. But this time in table number 4, don't show any additional turnover in audit. If it's detected in the audit, we show in 9C. फिर बाद में टेबल नंबर 5, ये जो टेबल नंबर 5 है इसमें एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, ये 17, 18, 18, 9 में भी ऑप्शनल था, तो 19, 20 में भी ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। और इसी हिसाब से हम इसको शो करेंगे कि पूरा के पूरा नील रेटेड जीएसटी हम एग्जाम्पशन में बता सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज दिस ऑप्शन यू कैन डू इन टेबल नंबर 5। फिर ये जो टेबल नंबर 5 में एग्जाम, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स का जो था, सप्लाईज जो अमेंडमेंट थी, ये हम ऊपर ही बता देते थे नेट ऑफ करके, तो वो 17, 18 के जो है वो 19, 20 को भी कायम है। सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस फ्लो of optional of net of credit notes and debit note. No need to show it separately. Then we come down to table number 6. Everybody should note down this. ये सबसे एक पहला चेंज है जो जीएसटीआर 9 के अंदर आया है। What is that change? In table number 6 we have to separately show capital goods now. पहले हम आईटीसी के अंदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज सब एक ही जगह हम दे देते थे, ब्रेकअप नहीं देते थे। Now we have to give the breakup. So 6B, 6C, 6D कॉलम के अंदर हमको ब्रेकअप देना है, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अलग एंड
कैपिटल गुड्स का अलग। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज फॉर GSTR 9, ये सब लोग नोट डाउन करें। फिर टेबल नंबर 6 में इंपोर्ट्स का अगर पैसा भरा है तो वो भी कैपिटल गुड्स का अलग से हमको देना है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज एक कर सकते हैं। देन वी कम डाउन टू टेबल नंबर 7, यहाँ पर कोई ज्यादा चेंज है नहीं। टेबल नंबर 7 रिवर्सल का है, जो पहले ऑप्शनल था 17, 18, 18, 19 में, वो 19, 20 में भी कायम है। जो हम पहले रूल और सेक्शन वाइज हम नहीं देते थे, एक ही जगह दे देते थे रिवर्सल, वो वी कैन कंटिन्यू दैट। देन कम डाउन टू टेबल नंबर 8। फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी हेडेक। Table number 8 is going to create headache for we all auditors of 1920. वो कैसे? टेबल नंबर 8 का है 2A और 3B का ITC का डिफरेंस है। अब यहाँ पर एनुअल डिफरेंस आता है टेबल नंबर 8 में 9 में। तो यहाँ पर अब थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा, मटेरियलिटी कंसेप्ट से भी जाना पड़ेगा। जैसे हमको इसको 3 इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, अप्रैल टू सितंबर, then October to Jan, then December, then Jan to March, क्योंकि यहाँ पर 36(4) एप्लीकेबल नहीं था, यहाँ पर 20% का रेशो था, Jan to ये 10% कर दिया। So how auditor is going to take a call कि the difference is within the parameters of 36(4). So rule 36(4) compliance of table 8 is the one of the biggest issue in this audit of 1920. Please note down this. एक टेबल बनाना पड़ेगा एक्सेल में, आपके पास में सॉफ्टवेयर अगर है तो उसका यूज करेंगे। GSTN से डाउनलोड करो, मंथली 2A और 3B के ITC के मिसमैचेस, उसको समेशन लगाएं, अप्रैल से लेके सितंबर डिफरेंस अगर है तो यू कैन स्किप इट। अक्टूबर टू दिसंबर इज देयर, चेक वेदर इट्स इन 20%, एंड फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2021 from January 20 to March 20, check whether it's below 10%. If the gap is more, then take a call on the materiality basis and qualify in 9C whether 36(4) is followed or not. Taxpayer will always say that I will not follow 36(4) because there is no supporting section to it. You can qualify, put it into note and then take a call. तो टेबल नंबर 8 के ऊपर सब लोगों ने ध्यान देना है इस बार 1920 के ऑडिट में। टेबल नंबर 10, 11 में कोई ज्यादा चेंज है नहीं, जो ऑप्शनल था वो यहाँ पर भी रखा है कि ITC आगे क्लेम किया है 12, 13 में, बताना है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। जनरली हम यहाँ बताते थे क्योंकि रिकंसिलेशन। एक छोटा सा चेंज भी आया है कि 180 सेक्शन 180 डेज में अगर ITC नहीं पेमेंट नहीं किया तो ITC रिवर्सल करना पड़ता है। तो वो अगर केस किसी की है कि मान लो अप्रैल 19 में ITC लिया, दिसंबर तक पैसा नहीं भरा तो रिवर्सल किया, अगले मई 2020 में पैसा भरा तो रीक्लेम किया, तो वो अगर रीक्लेम करते हैं तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। अब ये उस GST ऑडिटर के लिए जो बहुत ही ध्यान लगा के ये ऑडिट करता होगा, 180 दिन के प्रोविजंस को मैच करता होगा, नहीं तो अदरवाइज दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन वन में कैन कीप इन माइंड। नेक्स्ट is the table number 15 and 16 of GSTR 9. These are okay. This option continues to show here. 17, 18 HSN code wise summary हमको देना नहीं है। फिर बाद में आते हैं GSTR 9 टेबल के ऊपर। GSTR 9 टेबल के ऊपर अब क्या चेंजेस आए हैं, तो GSTR का टेबल नंबर 5, इसमें जो पहले ऑप्शंस थे 17, 18 वही 1920 में कंटिन्यू है कि 5O के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस हम बता सकते हैं, जो बीच में के एडजस्टमेंट है जो 5C, 5D, 5E के। बट फ्रेंड्स 9C के अंदर जो पहला टेबल 5 रहेगा, उसकी जो फर्स्ट अमाउंट आती है वो बैलेंस शीट से आती है, वो हम यहाँ पर एज इट इज P&L के स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से बताएंगे, और जो भी एडजस्टमेंट है वो हम इसी टेबल में बताएंगे। तो हम क्वालिफाइड डिफॉल्ट देंगे। हम 9 के अंदर एडिशनल टैक्स नहीं बताने वाले 9C में,
तो टेबल नंबर 5 से ही डिफरेंस चलेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में कैसा करना है मैं भी आपको वो बता दूंगा। तो टेबल नंबर 5 में वो ऑप्शंस कायम है जो 9C में जो थे 17, 18, 18, 19 में। सो दैट कंटिन्यूज। देन कम डाउन टू द टेबल नंबर 12 ऑफ आईटीसी। यहाँ पर ऑप्शनल था कि 17, 18, 18, 19 के अंदर कि आपने नेक्स्ट ईयर में कितना आईटीसी लिया है, बट वी वर नॉट यूजिंग दिस ऑप्शनल बिकॉज वी वर शोइंग सेपरेटली आईटीसी which is claimed in the next year in table number 12, but that option continues in 1920 also. तो 9C में कोई ज्यादा चेंजेस किए हुए नहीं है। टेबल नंबर 4 इज ऑप्शनल, जो लेजर वाइज आईटीसी हमको देना था वो हमको यहाँ देना नहीं है अकाउंट वाइज। नाउ वी कम डाउन टू आवर one of the most important discussion. I am just changing this my PPT here. Just I want कि इसको हम सब लोग बड़े गौर से देखें। तो ये आ रहा है क्या? Whether this is visible now, this PPT, whether it is coming? Yes sir. Yes, sir, it is there. Okay, thank you. तो अब हम आ रहे हैं मेन डिस्कशन के ऊपर कि 1920 में हमको कैसा करना है। हारी बाजी को हमको जीतना है, हम इसको कर सकते हैं। वी ऑल कैन डू इट। सो टू ब्रिंग बैक द जीएसटी ऑडिट्स, लेट्स डू व्हाट वी कैन डू द बेस्ट इन 1920 ऑडिट। हमको ये देखना था कि ये जीएसटी ऑडिट स्क्रैपिंग का क्यों आया। जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं क्या? जीएसटी ऑडिट का और जीएसटी का फ्यूचर क्या होगा? क्या रीजंस थे कि जीएसटी ऑडिट को इनको डिसकंटिन्यूएंस का प्रपोजल आए? रियलिटी क्या है? 17, 18, 18, 19 के ऑडिट्स किए, उसकी रियलिटी क्या है? और हमने एज अ ऑडिटर ऑफ 1920 में क्या करना है जिससे मैं भी मदद करूं कि ब्रिंग बैक जीएसटी ऑडिट। तो what we should do to help ICAI to bring back the GST audit? So let's start. अपना क्या रीजन आया? ये 39 जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें मिनट्स रखे ऑफिसर्स ने कि जो भी पैसा आ रहा है जीएसटीआर 9 से 3172 करोड़ और 9C से आ रहा है 391 करोड़। So there is a lesser revenue coming, everything is coming to annual return. And so for 17, 18, 18, 19, the issue is that there is a very lot of compliance. Many taxpayers are not able to give the fees. They are putting pressure कि ये जीएसटी का रिजीम बहुत हार्ड है। तो ऑफिसर्स लोगों ने ऐसा पिक्चर बनाया कि जीएसटी ऑडिट के थ्रू रेवेन्यू नहीं आ रहा है काउंसिल के सामने। But what is the reality when we check of 17, 18 and 18, 19? Maximum we CAs have done that additional tax has been paid from 9 rather than from 9C. और ऐसा क्यों करते थे? जैसे महाराष्ट्र में एमवैट ऑडिट था 704, वहां पर हम रिवाइज रिटर्न, एनुअल रिटर्न के अंदर ही पूरा टैक्स बता देते थे, एडिशनल टैक्सेस पे कर देते और अनक्वालिफाइड क्लीन 704 देते थे। तो वही आदत से हमने 17, 18, 18, 19 किया। We safeguarded the interest of the taxpayer without compromise on the revenue. यही हमने काम किया है कि हमने गवर्नमेंट के पैसे थोड़ी ही छुपाए, हमने तो पे किया है, रेवेन्यू दिया भी है थ्रू आवर ऑडिट, बट इट वाज गॉन थ्रू 9 टू अवॉइड द लिटिगेशन की नोटिसेस ना आए क्योंकि रिटर्न से ही कंप्लायंस हो जाए। सो व्हाट एवर एडिशनल टैक्सेस हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम 9, दे आर आल्सो फ्रॉम द 9C. दिस इज द रियलिटी, बट the figures are against us. Why? क्योंकि हम सब ने 9 के थ्रू ही पेमेंट कराया है, DRC 03 में भी वही डाला है, तो वो अब रिकॉर्ड पे आ गया है। बट वी हैव 1920 इन आवर हैंड्स। तो 1920 के अंदर जो भी अब पेमेंट करना है हमको, ये एडिशनल टैक्स हमको 9C से लेना है एक्चुअली। हाँ जी सर, जरा स्टॉप शेयर करके वापस शेयर कीजिए सर। 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपके इसमें। 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं? हाँ, ब्लैक बॉक्स दिख रहे हैं। जरा स्टॉप शेयर करके वापस शेयर कीजिए। 1 मिनट। अब आ रहा है? नाउ इट इज विजिबल? हेलो
हेलो, सर अब अभी आ रहा है? ऊपर ब्लैक बॉक्स है सर। एक मिनट, स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर। अब आ रहा है? अभी परफेक्ट है सर। ओके, थैंक यू। ओके। तो अब ये जो रियलिटी चेक है वो ये था कि 9 और 9C के जो फॉर्मेट्स है इसमें चेंज करने की बात थी। आईसीआई ने भी रिकमेंडेशंस दिए थे। हम 2 साल से कह रहे थे कि यहाँ पर नेट लायबिलिटी नहीं आती, ये फॉर्म्स को करेक्ट करो। एडिशनल टैक्स DRC 03 से पेमेंट करना पड़ता है, उसका लिंक नहीं है, वो लिंक 9 और 9C से लाओ। इंटरेस्ट पेमेंट का भी कोई आगे लिंकेज नहीं आता है, तो ये रिवर्सल भी DRC 03 से बताना पड़ता है। आईटीसी के टेबल नंबर 9 के रीजंस को जस्टिफिकेशन का जगह नहीं है, तो रीफॉर्मेटिंग करो। स्क्रैपिंग ऑफ 9C was not the solution, and we have been representing the case to the government many times, but they were not listening कि GSTN के अंदर प्रॉब्लम है, हम फॉर्म बदल नहीं सकते। तो दिस कैन बी व्हेन वी लुक फ्रॉम वेरी डिफरेंट एंगल कि ऑफिसर्स को जीएसटी ऑडिट उनका खुद का चाहिए था डिपार्टमेंटल, they doesn't wanted our professional audit, so the fight was there internally, and what has happened, statistics has gone wrong against us। वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने सब एनुअल रिटर्न से पेमेंट बताए, अब हमको 1920 में एडिशनल टैक्स, आईटीसी रिवर्सल, ये सब 9C के थ्रू बताना है। हाउ वी विल डू दिस? अब ये मैं शेयर कर रहा हूं 9C का जो एक्सेल फॉर्मेट है, ये दिख रहा है सबको? वेदर इट इज विजिबल? एक्सक्यूज मी, कैन एनी? एक्सेल नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है? ओके, तो इसको फिर से मैं अभी शेयर करता हूं, स्टॉप शेयर करके फिर से वापस शेयर करता हूं एक्सेल। शेयर Now- एंटायर स्क्रीन। नाउ हाँ अभी दिख रहा है सर। वो शेयर एनी कर लेता हूं बाद में, ठीक है? ओके। So what is the crux now for 1920? 1920 का जो भी जीएसटी ऑडिट हम भरेंगे, इसके अंदर मुझे ऐसा करना है कि जो भी 9 में करेक्शंस करने हैं वो हम नहीं करेंगे, हम 9C में करेंगे। मान लो मेरा टर्नओवर यहाँ पर 5.5 करोड़ के ऊपर है, 1 लाख रुपए का मेरा एडिशनल लायबिलिटी आती है, तो मैं पहले GSTR 9 में यहाँ बताता था, टेबल नंबर 4 में वहां डालता था, अब मैं वहां पे नहीं शो करूंगा। तो यहाँ पर टेबल नंबर 5 9C में 1 लाख का डिफरेंस चलेगा। GSTR 9 एज इट इज जाएगा, तो 9C में 1 लाख रुपए यहाँ दिखेंगे। उसके रीजंस हम डालेंगे कि रिकंसिलेशंस में एडिशनल टर्नओवर आया है, वही टेबल नंबर 7 में भी डिफरेंस रहेगा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 9 में। यहाँ पर रिकंसिलेशन जो रेट वाइज है उसमें मैंने एग्जांपल के लिए लिया हो कि 28% का 1 लाख का लायबिलिटी रह गया था, उसके ऊपर 14 हजार रुपए का टैक्स आ रहा है मेरा, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया। पहले टेबल नंबर 9 में ये अमाउंट GSTR 9 से जो आती थी, यहाँ पर हम सब करेक्शंस कर लेते थे, तो यहाँ पर 0 अमाउंट आती थी, ये टैली होता था। पर अब यहाँ पर मैं 9C के थ्रू पेमेंट बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 14 हजार रुपए एडिशनल आएगा। आपके केस में ये अमाउंट अलग अलग अपने अपने हिसाब से होगी, बट माय अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस। हम लोगों को आदत नहीं है क्वालिफाइड 9C देने की, क्योंकि हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देने में कई बार संकोच करते हैं, बट इस बार नहीं करना। टू इट सेफगार्ड आवर प्रोफेशनल ब्रदर्स इंटरेस्ट की ऑडिट के अंदर हमको ये चीजें बतानी है। अब एडिशनल टैक्स पेएबल विच इज नॉट पेड, तो ये एक कॉलम है जो कॉलम नंबर 11 है, वहां पर मैं 14 हजार रुपए बता दूंगा, जिससे ये एडिशनल टैक्स का पेमेंट मुझे 9C में दिखेगा। फिर आता हूं मैं एग्जांपल आईटीसी का, तो आईटीसी के अंदर 50 हजार रुपए मैंने एक्सेस आईटीसी लिया है। 3B के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड होके GSTR 1 से आ रहा है, मैंने वहां पर रिवर्सल नहीं किया हो, क्योंकि मैं इस बार 9C के थ्रू रिवर्सल करूंगा,
तो बुक्स में मैंने रिवर्सल कर दिया था, तो ये 50,000 रुपए का डिफरेंस, तो आईटीसी रिवर्सल भी मेरा है 50,000 का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया हूँ। फिर जब मैं नीचे आऊंगा तो टेबल नंबर 16 है, यहाँ पर मुझे टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल आईटीसी यहाँ पर डालना है 25,000 आईटीसी जो मुझे रिवर्सल का भरना है। फिर this is the most important, please note down this, all my professional brothers and sisters, हमको जीएसटी ऑडिट करते वक्त इस साल 1920 में ये टेबल के ऊपर ध्यान देना है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, जिससे गवर्नमेंट के पास ये जाए कि ऑडिटर ये 1920 में ऑडिट के थ्रू इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 14 हजार रुपए का आउटवर्ड टैक्स बताया, आईटीसी रिवर्सल 25 हजार बताया, कोई इंटरेस्ट का भी पेमेंट होगा तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर दिया है टू बी पेड थ्रू कैश, दिस इज नॉट लीगली करेक्ट, यू कैन यूज क्रेडिट ऑल्सो ऑफ 1920 इफ इट इज कैरी फॉरवर्ड टिल 2021, तो पेड थ्रू कैश को इसको नजरअंदाज करें। तो ये टेबल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट, टाइम कम है, 28 फरवरी तक करना है, थोड़े पेन्स लेने पड़ेंगे, स्टाफ को समझाना पड़ेगा। हम हमारा ज्यादा तक समय 9 टैली करने में डालते थे, अब 9C को टैली करने में डालो। अभी तक का हमारा अनुभव ऐसा है कि 9 हो गया कि 9C ऑटोमेटिक हो जाता था, पर अब वैसा नहीं करेंगे, 9 एज इट इज करेंगे, 3B के हिसाब से उसको टैली करो, जो भी बुक्स के हिसाब से करना है वो 9C में करो, एडिशनल टैक्स का। तो ये थोड़ा ध्यान रखे, इस हिसाब से 9C बनाए। फिर आगे मैं फिर से ये स्टॉप स्क्रीन करके इन्हीं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ ऑन, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। कहाँ से लेना है ये स्क्रीन, ये पहला ही, ओके अब आ रही है स्क्रीन? हाँ सर। ओके थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट क्वालिफाइड 9C देंगे, उसके बाद में हम DRC 03 में आएंगे और DRC 03 में एज पर ऑडिट का पेमेंट मैं सिलेक्ट करूंगा। तो DRC 03 अभी तक जो हम बनाते थे, कैसे बनाते थे वो मैं अब आपके सामने ले रहा हूं कि पहले मैं जब DRC 03 बनाया करता था 17, 18, 19 में, तो मैं ये एनुअल रिटर्न वाला कॉलम सिलेक्ट करता था। अब 19-20 में, नाउ इन दिस जीएसटी ऑडिट we must select reconciliation statement in our DRC 03 for any payment of interest, tax or ITC reversal. Please select reconciliation statement. Reconciliation statement के बाद में आगे का सब करो। कई लोगों ने तो पिछले साल वॉलेंटरीली बता दिया है, तो ये वॉलेंटरी करेंगे, we will show it in reconciliation statement itself. So please take care and show it in reconciliation statement of this 1920 audit. चीजें यहाँ पर कनेक्ट करेगा कि कौन से सेक्शन में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये को उसको शो करना कौन से सेक्शंस में हम ये बता रहे हैं। तो प्लीज डू दिस एंड अकॉर्डिंगली फॉलो। ओहो बैटरी लो चल रही है, बट इट विल कंटिन्यू। आई विल connect with the charger to the laptop. Give me 1 minute. Sorry for the break of charging. In the meantime, if any members have got any queries, they can type in the Q&A box. ओके आई एम बैक। तो ये एनुअल स्टेटमेंट से ही हम DRC 03 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ही हम DRC 03 इस बार बताएंगे ऑडिट के अंदर। एंड दिस इज मस्ट to give the statistics to the department
that whatever revenue is coming from the annual return, that was from the audit. So please select reconciliation statement and accordingly prepare DRC 03. Then file UDIN properly of ICI. कई लोगों ने 000 करके UDIN बना लिए है, but कि ये थोड़ा सा यूडिन क्यों लाया गया? यूडिन इसी के लिए लाया गया कि उसमें जो टैक्स आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, आईटीसी रिवर्सल है, इसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इकट्ठा करे। तो इसके लिए प्लीज फाइल यूडिन प्रॉपरली फॉर 1920। 18-19 में कई लोगों ने स्किप कर दिया होगा, 00 फाइल करके चले होंगे, बिकॉज वी नेवर पेड additional taxes from the 9C. So some may have done it, some may not have done it. So this is the last chance of 1920 to bring back the future GST audit. Please do this. अब हमको क्या प्रोसीजरल चेंजेस करने हैं अपने ऑफिस में? पहले हम 9 फाइल करते थे, फिर हम DRC 03 फाइल करते थे, और फिर GSTR 9C फाइल करते थे अनक्वालिफाइड। अब हमको एज इट इज 9 फाइल करना है, फिर हमको 9C यहाँ पर विथ टैक्स रिकमेंडेशंस, एंड देन फाइल DRC 03 विथ रिकंसिलेशन। तो ये थोड़ा प्रोसीजरल चेंजेस करे अपने ऑफिस में, और इस हिसाब से GST ऑडिट फाइल करे। थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, क्वालिफाइड नहीं देने की आदत है हमको, पर इस बार प्लीज डू इट एंड अकॉर्डिंगली फॉलो इट। प्लीज सर्कुलेट दिस मैसेज मैक्सिमम विद ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कर नीति के मेरे ग्रुप्स के अंदर, कर नीति के मेरे यूट्यूब्स के वीडियो में भी मैंने ये एक शेयर किया है वीडियो। आई विल अगेन सेंड इट टू विजय सर। प्लीज सर्कुलेट इट दिस वीडियो टू मैक्सिमम सीएस। और हमने ये करना चाहिए कि 1920 में एडिशनल टैक्स के थ्रू पेमेंट बताना चाहिए। सो सर्कुलेट, देन इट विल गो टू दी GST काउंसिल कि क्या रेवेन्यू आ रहा है ऑडिट के थ्रू। फिर 9 और 9C का कंबाइंड रेवेन्यू रीड करना चाहिए। बाकी लॉस के अंदर भी GST ऑडिट है, ऑडिट्स है, उसका फायदा ही हुआ है। कंप्लायंस बर्डन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर का भी बर्डन कम हुआ है। इट्स अ टैक्स पेयर फ्रेंडली ऑडिट। So scrapping of GST audit was not the solution. Enhancing may be the limit, and reformatting the audit report was the solution. दोनों annual return और audit report का format एक करने की बात हो रही थी, but suddenly cancellation has come up. So please do our duty. Don't put any negative remarks on the social media, क्योंकि एक advisory भी ICI ने दिया है, क्योंकि कई बार anxiety में CS ने वो किया। We should not do that. So my humble suggestion, my humble request to all of you, that time is the key to all the solutions. So wait for 1920 audit to finish, do it properly so we can put a case against to bring back the GST audits. So keep sharing knowledge. That was my suggestion कि हमने ये ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज शेयर करना है। आज वैलेंटाइन डे है, so please share the knowledge and go ahead. तो मेरे ये email IDs है, मेरे groups है, you can always join, you can always share. So keep doing it. Now we come down to the last aspect of the departmental audits. ये एक मेरे को यहाँ पर additional task था इस बार, तो I will just share that what is the positions of departmental audits and how we are going to do this in this PPT. I am sharing here. What are these? Now this is the slide for departmental audits. ये नोटिसेस आ रही है 17 के डिपार्टमेंटल ऑडिट्स की, जो कि हमको आ रही है सेक्शन 64(5) के तहत। 64(5) is the audit of department, this section, and they have already started issuing notices to many of our taxpayers. This is the first year 17-18, and the GST department is coming up with lots of information, lots of data. ADT01 is the format. एक्चुअली 9 और 9C का फॉर्मेट है, पर इनके ऑडिट का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। ये इनके मर्जी से यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको मांगते हैं, और ये इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर शेयर किया हुआ आपके सामने एक छोटा सा स्लाइड जो हमारे भी ऑडिटर के टैक्स पेयर को आया था।
एनुअल रिटर्न की कॉपी वो मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का डेटा मांगेंगे, ट्रायल बैलेंस मांग रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, 99C फाइल किया, आईटीसी लेजर, ई वे बिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ई वे बिल का रिको, GSTR1 का रिको, फिर कॉपीज ऑफ ट्रांसफर, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं। और इसके अलावा भी उनके अनेक्चर्स है जो कि हमको फिलअप करने हैं, जो ईमेल के थ्रू भेजो, तो ये ऑडिट कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, what is more important for us, how to face this audit? We have to give them the documents, but cross check whether DIN number is there on the notice. तो सबसे पहले DIN number होना चाहिए वो नोटिस पे। दूसरा, वो जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनली भी मांगेगा, ईमेल के थ्रू मांगेगा तो नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी अलग से DIN number वाला एक सेपरेट ईमेल चाहिए, नोटिस चाहिए। फर्स्ट नोटिस में उसने 4 चीजें मांगी, फिर बाद में वो 10 चीजें मांग लेता है, तो वो 10 चीजों के लिए भी हमने देना चाहिए कि भैया तू मुझे DIN नंबर डाल के ये रिक्वायरमेंट दे तो ही दूंगा। दूसरा, हमारा ग्रीवियंस सेल था कमिश्नर्स का, उसके मैं मेंबर हूँ फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो हमने ये कहा था इसको फेसलेस करो, तो इसके लिए वो ईमेल के ऊपर डेटा मांग रहे, दे शुड नॉट ask physical copies, but in few instances they are asking for physical copies also. दूसरा, वो आ रहे हैं ऑडिट्स के लिए, प्रीमाइसेस के ऊपर बैठते हैं, अननेसेसरी डिस्कशंस और प्रेशर टैक्टिक्स भी हो रही है, सो वी हैव टू फेस देम. We have been doing in earlier also in service tax regime, but tell the taxpayer to raise the grievances in case of hardship through their association. हो क्या रहा है, हम सीए लोग ही बोलते हैं कि ऑफिसर्स आर नॉट डूइंग ऑडिट्स प्रॉपरली, बट द टैक्स पेयर शुड टेल थ्रू देयर एसोसिएशन टू द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट विल आल्सो कम टू नो दैट व्हाट इज द फिजिकल एंड फैक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस ऑडिट्स. देन once we comply this, then there are penal provisions for contraventions. वो तो दिखते ही है कि बुक्स अगर आपने प्रॉपर नहीं मेंटेन की है, प्रॉपरली हमको जवाब नहीं दिया, तो पेनल्टीज भी लगेगी. अब ये ऑडिट के लिए आ रहा है तो जीएसटी नंबर अपना वहां पर है कि नहीं है वो देख लो, नहीं तो 25,000 रुपए की पेनल्टी वो इसके लिए लगाता है कि यू हैव नॉट फर्निश जीएसटी नंबर ऑन योर शॉप और ऑन योर गोडाउन और ऑन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. तो ये थोड़ी बहुत केयर ले ले. अब इसको फिजिकल हैंडलिंग और फेस टू फेस हैंडलिंग ही इंपॉर्टेंट है. लीगल स्टैंडिंग अगर देखेंगे तो दे हैव राइट्स टू सेंड द ऑडिट्स notices and conduct the audits. In spite of all the audits, our GST audit, company audit, tax audit, they can continue their audit, but we have to face their music. So legal point of view, the litigation will start once the audit closes. They will pressurize to pay the tax through DRC 03, pay the interest, pay the penalty also of 15%. पर 15% पेनल्टी कब लगता है, वो एससीएन इशू करेगा, 30 दिन के अंदर हम भरेंगे तो ही 15% लगता है, नहीं तो ये ऑडिट में ही बोलते हैं पेनल्टी. तो पेनल्टी ना पे करे, एडिशनल लायबिलिटी आ रही है तो टैक्स और इंटरेस्ट के थ्रू पेमेंट करे, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको. सो वी कैन नाउ गो थ्रू दिस कि डिपार्टमेंटल ऑडिट और जीएसटी ऑडिट के अंदर क्या है. हमको 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी ऑडिट लगता है. डिपार्टमेंटल ऑडिट उनके विश और उनके जो भी सिस्टम से निकला है, अब एक्चुअली दे हैव पावर्स टू कंडक्ट द डिपार्टमेंट ऑडिट, तो वो उनके हिसाब से इसकी एप्लीकेबिलिटी करते. टाइम लिमिट नोटिस के अंदर बताई है, वो हिसाब से करना है. देयर इज नो फॉर्मेट फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट. डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आर देयर हु विल कंडक्ट इट. प्लीज चेक द DIN नंबर, देन ओनली गिव द future reply. If DIN number is not there, then notice may be incorrect. फिर ये litigations का part बन सकता है क्योंकि many officers are not well versed with the provisions. We have to comply it. तो impact on ease of doing business तो negative है. Taxpayer perspective से ये friendly approach नहीं होता है. litigation बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, and accordingly we have to carry on. So this was my submission. Now I am stopping the screen sharing and I will go for any question and answers if the organizers permit, because there are 10 to 15 minutes where we can take the question answers. I am stopping the screen sharing. Over to you, Vijay sir.
Thank you, sir, for such a wonderful session. क्वेश्चन आंसर Yeah. No. क्वेश्चन आंसर ले लूं? हाँ ले लो sir. You want somebody to read or you? हाँ, तो no, I will read. Okay. First question, sir. Rule 36(4). Should we reconciling with GSTR 2A or 2B? It's 2A. लीगली पूछेंगे तो 2A के हिसाब से है, बाद में ये 2B का आया है। अब ये रूल 16 के अंदर सेक्शन 16 में अमेंडमेंट करके आगे 3B को भी ले लेंगे, तो 2A इज द करेक्ट डॉक्यूमेंट। अरे मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? आंसर्ड में देखिए सर। आंसर्ड में, अच्छा आंसर्ड में चला जाता है क्या? हाँ। ओ अरे वाह, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, rule 86B, tax has been collected separately for AGST, CGST, IGST, cess or total liability of the assessee. It has to be 1% for each AGST, CGST, IGST and cess. तो अपने को उस हिसाब से जाना पड़ेगा। Then ITC to be taken based on GSTR 2A or 2B as there are differences in the both the statement. ये फ्लॉ है GSTN नेटवर्क का, हमने डिस्कस किया। 2A को ही बेस है, पर 2B को अब वो आगे बेस बनाएंगे सेक्शन 16 2A के अमेंडमेंट्स के बाद। अभी तो अपने को सेक्शन 16 के हिसाब से ही ITC लेना है, बट दिस विल स्टॉप वंस 16 2AA जो बजट में अमेंडमेंट आई है वो पास हो जाएगी, तो ये सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर अपने को 37 रूल के में जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। देन फॉर चेकिंग ITC on portal 2A or 2B is to be checked if our client has furnished GSTR1 late before we filing GSTR 3B, then can we take the credit? हमारे क्लाइंट ने GSTR1 लेट फाइल किया है, तो GSTR1 लेट फाइल किया है 3B पर। इफ आवर क्लाइंट, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग दिख रहा है क्वेश्चन, बट फॉर चेकिंग ITC लीगली 2A है, पर अब वो 2B का भी रोल आ गया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है ही सभी के इसमें। तो 2A के हिसाब से चले, 2A अलग से भी डाउनलोड करे, उसको भी देख ले, और 2B अभी ये प्रमोट कर रहे हैं, तो अब ये सेक्शन अमेंडमेंट जो आ गई है उसके हिसाब से चलेगा। आंसर यही है इसका, जो पहले भी मैं दे चुका हूँ। Then is GST 9 optional for turnover below 2 crore? Yes, it is optional below turnover of 2 crores. Then will GSTR 9C extended? क्या सवाल है, जबरदस्त सवाल है ये। 28 फरवरी के बाद में पता चलेगा, 28 फरवरी की डेट है, आज 15 तक तो हमने काम ही शुरू नहीं किया है, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स आया है कि हजारों में ही 9C गए हैं, लाखों 9C पेंडिंग है। तो मे बी इन द लास्ट वीक वी कैन कमेंट ऑन दिस, आज तो नहीं बता सकते। कैन वी क्लेम ITC इन GSTR 3B एज पर 2A विच कैन बी मोर देन GSTR 2B? ये यस 2A के हिसाब से चले। देन for new registration Aadhaar authentication link was received, but I clicked on the link, I did not proceed further as the link was not opening. What could be the reason of the same? Technical glitch, grievances raise करे प्रवीण जैन जी, इसको grievance में डाल के ही करना पड़ेगा। Then can we show ITC of input and input services together in table 6 of GSTR 9? Yes, we can show that. Then next, in case of reversal of IGST paid through GSTR 3B at the time of GST audit, IGST to be paid from which state, supplier state or recipient state? Actually it should be of the state to which GSTN belong. अब ये ITC है, ITC मेरा है, तो रेसिपिएंट जो है उस स्टेट का ITC होता है, उस स्टेट का आप GSTN सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, then we are auditor or tax collector. What auditor has to do with the additional tax? Are we babus? How can an auditor sacrifice impartiality? सही जवाब आपने बोला है, पर सर GST ऑडिट का ये जो भी फॉर्म था ये इनकम्प्लीट फॉर्म है, we have to change it and we have to recommend additional tax now to get our GST audit back.
whether purchaser is liable to pay GST if ITC is not shown in 2A. Not liable. Section 16 doesn't support rule 36(4). Amendment आने के बाद में होगा. Go by section 16. Then excess ITC taken under CGST SGST can be adjusted against short ITC under IGST. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये रेवेन्यू न्यूट्रल केस है, पर ये रेवेन्यू न्यूट्रल केस के अंदर भी हमारे लिए तकलीफ है. डिपार्टमेंट ये बोलता है कि CGST SGST रिवर्स करो, पैसा भरो और बाद में IGST आप क्लेम करो अलग से. तो थोड़ा सा मटेरियलिटी कंसेप्ट लेके इसको कवर करें, क्योंकि डिपार्टमेंट विल नॉट एग्री फॉर दिस. पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 9C 25,000 रुपए जनरल पेनल्टी. नेक्स्ट, वेयर इज मिस एक्सपोर्ट टू बी शोन इन GST एनुअल रिटर्न. इसको आप 9 टेबल नंबर 5 में ले सकते हो, जहां पर एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाईज में, क्योंकि ये आगे एग्जम्प्टेड में जाएगा. एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विद पेमेंट ऑफ टैक्स अलग करें. How to pay excess ITC claim in 17-18, ITC claim in IGST and wrongly utilized in CGST and SGST. ये एक ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है बहुत से केसेस में, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल है, गलती से CGST SGST यूटिलाइज हो गया, वो IGST यूटिलाइज होना चाहिए था. अब ये जो एक्सेस हो गया है, इसको अगर लीगली जाए तो DRC 03 से इसको करें और फिर 3B में इसको क्लेम करें. पर अभी 3B में क्लेम करेंगे तो ये लिटिगेशन होएगा कि 17-18 का है, 16-4 का बीच में आएगा. बट इफ द अमाउंट इज सब्सटेंशियल, प्लीज गेट इट इन दिस 3B. वी शुड फाइट कि हमारा ये लीगल क्लेम है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए क्लाइंट का. 9C लिमिट ओवर 5 करोड़ ओनली. यस, it is advisable to file 9 for below 2 crore. What are the benefit? If there is a difference in books and 3B, please file it. If there is no difference, you can skip it. Annual return liability can be adjusted through ITC or to be paid in cash only in DRC 03. अगर आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है तो लॉ के हिसाब से you can use the credit, but it should be of 1920, which is still carry forward in 2021 also today. For 17-18 audits are going on and department is asking the tax liability for difference in ITC as per 3B and 2A. Earlier ITC was showing 2A. Assessee has not taken any screenshot or not downloaded the 2A. Later it is not showing in 2A. अरे ये तो बड़ा अजीब केस है. What is the position now? 17-18 के अंदर रूल 36(4) नहीं था, तो रूल 36(4) नहीं रहने से 2A का रेफरेंस नहीं आ सकता. सेक्शन 16 के हिसाब से चलना पड़ेगा. ITC पे नहीं करना है, लिटिगेशन करके फाइट करना है ये केस में. नेक्स्ट, कैन वी कंसिडर 20%, 10% ITC proportionately for ITC for 1920 in table 6? Yes, we have to do that. प्लीज इसको सेपरेट करें 3 कॉलम में, अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च, और वो हिसाब से चले. नेक्स्ट, इन केस इफ RCM liability is missed for the payment of 18-19, now whether can we pay same and take credit, or for taking ITC on RCM paid will be under restriction. You pay now and take the credit now, no problem at all. In case of turnover below 2 crore, GSTR 9 file voluntary, notice for audit be received? No, it will not be received. If exports service sale is not shown in 3B and 1, whether to file GSTR 9? Yes, you can show it in GSTR 9, no problem. RCM of 17-18 is to be paid by audit team of GST audit of 17-18. Whether ITC of RCM of 17-18 be claimed now? Yes, you can claim now on payment basis. Pay it along with interest and claim ITC now. Then next is there any mechanism to claim refund if excess ITC paid as per GSTR 9? Excess ITC paid, अगर आपने DRC 03 से पेमेंट किया है एक्सेस ITC का,
तो ठीक है, पर अगर आईटीसी क्रेडिट लेजर है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स में ही मिलेगा। ये एक्सेस आईटीसी पेड थ्रू डीआरसी 03 अगर है, रिवर्सल एक्सेस हो गया था और उसको हमने कैश से पे कर दिया है, तो आप रिफंड ले सकते हो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। वेदर wrong ITC taken in 1819 and the turnover is below, how to pay ITC? DRC 03 से पे करो आप, अगर टर्नओवर बिलो भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। GST audit notice issued by the designated officer. After completion of audit by the designated officer, what document the officer will be issued that the audit has been complete? हेलो सर। एरिया है वो उसके ऊपर। हेलो If ACA not issued. सर, कैन यू रिपीट द लास्ट क्वेश्चन? हेलो हेलो, या हाँ जी। the last one, the GST audit notice issued by the designated officer, that answer can you repeat again? इसमें कैसा है कि जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट कंक्लूजन का एक स्टेटमेंट लेगा अपने से, उसमें क्वेश्चंस पूछेगा, दैट विल बी द कंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट। इफ देयर इज अ लिटिगेशन अराइजिंग फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट, देन ही विल इश्यू अ SCN सेपरेटली। ओके, वो SCN फिर आगे लिटिगेशंस के लिए अपने को आगे लेके जाना है। अगर ऑडिट अगर विदाउट एनी लायबिलिटी क्लोज होता है, विदाउट एनी लिटिगेशन क्लोज होता है, तो दैट ऑडिट कंप्लीशन नोट इज द डॉक्यूमेंट। last question sir, if the RCM liability is paid with GST 9, does interest need to be paid on the same? In case क्या RCM liability is paid with GST 9, does interest need to be paid on the same? If the RCM is pertaining to previous year and now we are paying, then we have to pay with along with interest. Okay, then I think two more questions have come. In case of turnover below 2 crore, it is advisable to file 9 voluntarily. If there is a difference in books, you can, otherwise no need. ये RCM 17-18 paid now, credit can be claimed on the basis of payment. Yes, you can claim it. 3B में बताए तो करंट ईयर के करंट मंथ के 3B में बता के आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि DRC 03 से पेमेंट किया RCM तो निकल जाएगा, वो नहीं आएगा ITC के लिए, तो show it in current month 3B. Thank you sir for such a wonderful session. Some announcement. Our next meeting is scheduled on 17th February, Wednesday, from 5 to 7 p.m. The topic is on valuation, the current trend and future outlook. It is taken by none other than CA Sujal Shah. Now, sir, coming to the present task of proposing a well-deserved vote of thanks to you, sir. Sir, you have taken the budget amendments in such a wonderful way. You have taken what are the changes which will come post 1st of January 2021. Your explanation was very good. Your presentation was very excellent, sir. You have also taken us through the new schemes like QRMP, Section 36(4), Rule 36(4), Rule 59, Rule 86B, and so on and so forth. You are also commented. You are also taken us through the GST audit. What as a professional, what care we have to take? The sequence of filing: first 9, then 9C, then you have to file the DRC 3. So this will come to the notice of the government that there is an increase in the revenue, and probably they might reintroduce the GST audit for the profession. Sir, we are indeed thankful to you for spending a valuable time. So on behalf of Borivali Central CP Study Circle, I propose a well-deserved vote of thanks and request the member to carry out with a loud applause. Thank you. Thank you, Vijay ji, and please share the video which is available on YouTube in the Karniti channel of 9C. Yeah, definitely. कि हमको कैसे करना है, और मैक्सिमम CA के पास में ये जाने दो, मैक्सिमम इसको आप स्प्रेड करो. That is my humble request. Thank definitely. Okay. So we'll be ending the session now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Trivedi ji. Thank you, Vijay ji.
Thank you, sir.